Namaskar, good afternoon. For last 1 week or so, there has been a news about a particular bailout which is being discussed. Well, while this is happening, there are some companies and their owners who are acting belligerent, making statements, and at the same time challenging the government, and at the same time also refuting the government. But at the same time, the controversy of bailout to the airlines has again stirred a debate in the country. और साथ साथ हमने ये भी देखा है कि देश में विमानन कंपनियां, चाहे आधार जो भी हों, सामान्य पैसेंजर्स, कई हवाई जहाज कैंसिल किए जा रहे हैं। पैसेंजर्स को किसी प्रकार की राहत नहीं मिल रही है। वो वैसे पैसेंजर हैं जिन्होंने पूरा पैसा दे करके टिकटें खरीदी हैं। और अब एक और विषय आया है और मैं समझता हूं कि ये आवश्यक है कि इस संबंध में सरकार की तरफ से टिप्पणी आए। और कुछ विमान कंपनियों ने, और उसमें से विशेषकर एक जो बड़े घाटे में है, उसने कहा है कि हम घाटे के रूट्स पर नहीं चलाएंगे। जो देश में रूट डिस्पर्सल गाइडलाइंस हैं एयरलाइंस के लिए, उसमें जो ट्रंक रूट्स हैं, जैसे कि दिल्ली मुंबई, दिल्ली बेंगलोर, दिल्ली कलकत्ता, दिल्ली मद्रास, इसका 10% जितने भी वो सेक्टर ऑपरेट करते हैं, उसके 10% को सरकार ने बाध्य किया है कि वो जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में तथा आइलैंड्स में, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में उसका 10%, 10% of the main trunk routes have to be, these airlines, whether private or government, have to essentially deploy their capacity in the northeastern states, in Jammu and Kashmir, and the island states of Lakshadweep and Andaman and Nicobar Islands. A company which is reeling under losses has challenged this. It's a matter of concern because connectivity, which is essential to these northeastern states or the island states or for places like Jammu and Kashmir, is essential both for social and economic reasons. The government has to come clear with an explanation on this. But going to the overall picture, it's a fact that today the civil aviation sector is in a complete mess. There was a time post 2003-2004, and as late as 2008 and 9, the growth in the civil aviation sector between domestic and international was to the tune of 35% to 45%. मैं बताना चाहूँगा कि 2003-2004 जो रिफॉर्म्स का एक अध्याय एनडीए की सरकार ने समाप्त किया, उसके परिणाम स्वरूप 2008-2009 तक की अवधि में वायुयान के क्षेत्र में जो विकास का दर था वो लगभग 35 से 45% था। आज ये दर घट करके पुनः 12 से 15% हो गया है। जो भी वायु क्षेत्र के इस सेक्टर का अध्ययन करते होंगे, it is very natural for any country's aviation growth to take place, which is 1.5 times that of the national growth rate. For example, if India is having a growth of 7%, it is very natural, automatically, the aviation will grow at 10 to 12%. That means it is zero growth.
The government, the policies of the government have completely led to a situation where the aviation growth in this country has dipped to a level which was never seen before. We are not concerned about how the government has to respond to bailout, but there would be a lot of answers to take place. And our concern today is much more beyond that. What you are seeing and what is being heard is not the true story. जो आप सुन रहे हैं, जो किसी एक या एयरलाइन को बेल आउट करने की बात कर रही है, ये पूरी कहानी नहीं है. इस कहानी की तह कहीं और है. और वो कहानी, वो उद्देश्य इस सरकार में पिछले दरवाजे से जो एफडीआई है एविएशन में, जो प्रस्ताव सरकार ने और सिविल एविएशन मंत्रालय ने दिया है, अभी तक जो निवेश का प्रावधान एविएशन सेक्टर में है उसमें 49% किसी भी फॉरेन कंपनी का निवेश हो सकता है. लेकिन किसी भी सूरत में वो निवेश किसी एयरलाइंस या एयरलाइन से जुड़े हुए कंपनी का नहीं हो सकता है. वर्तमान में सरकार ने और सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने, मिनिस्ट्री ने एक प्रस्ताव दिया है जिसमें 24% इन्वेस्टमेंट एंड एफडीआई इन्वेस्टमेंट इज बीइंग proposed to be allowed in the Indian civil sector. The DIPB, the Ministry of Commerce, has proposed 26%. If this happens, then it may suit one company. One company may have the advantage of infusing funds, but the end product would be the cartelization of foreign companies and a complete rollback on the policy of the civil aviation sector and the growth of the civil aviation sector in this country. The day this policy is launched with an intent to bail out one company, that too clandestinely, it may serve one company but would result in a complete annihilation of the civil aviation sector, including the state-owned airlines Air India and its subsidiary. It's a matter of great concern. The day foreign airlines have equity participation, have their investment in the airlines of this country who are faltering, there would be a complete takeover. And we have seen airlines like Emirates, which is already positioned itself the strongest for whatsoever reason. It would result in a complete annihilation of the civil aviation industry. We would like, and the Bharatiya Janata Party would like to seek a clear clarification and express clarification on this issue of FDI, which is being done without consultation with the stakeholders. सरकार ने पेट्रोल की कीमतें 2 रुपये 22 पैसे कम करने की घोषणा की है. लेकिन सरकार ने यह नहीं बताया है कि पिछले 24 महीने में सरकार ने इस बात का स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि यूपीए 2 के कार्यकाल में, यानी कि लगभग 24 से 25 महीने में, पेट्रोल की कीमतें लगभग 24 रुपये बढ़ी हैं. और जो कीमतें बढ़ाई गई हैं उसके एवज में समाज और आवश्यक उपभोक्ताओं के लिए जो वस्तुएं थी उनके कीमतों में जो वृद्धि हुई है, उस वृद्धि की भरपाई सरकार कैसे करेगी? इट्स एन आई वॉश. द इन्फ्लेशन विच इज ट्रिगर्ड आउट ऑफ enhancement of prices cannot be set right by a minuscule reduction. It is politics, and we would like to ask the Prime Minister of his commitment to cut inflation
द ओवरऑल इन्फ्लेशन, स्पेशली द फूड इन्फ्लेशन। और हम आपको ये बताना चाहेंगे, जो पेट्रोल की कीमतें 2004 में उस समय 35 रुपये थी, आज इस देश में पेट्रोल की कीमतें लगभग औसतन 70 रुपये हैं। और जनवरी 16, मई 14 और सितंबर 15, 2011 में कि पेट्रोल की कीमतें पिछले 6 महीने में लगभग 8 रुपये बढ़ाई गई हैं। सरकार देश की जनता के साथ ये आंख मिचौली खेल रही है। सरकार, कांग्रेस की सरकार, जनता की आंखों में धूल झोंक रही है और भारतीय जनता पार्टी इसे कतई स्वीकार नहीं करेगी। यही स्थिति डीजल के प्राइसेस का है। और मुझे लगता है कि जहां एक तरफ पेट्रोलियम कंपनियां, चाहे वो ओएनजीसी हो जो ऑयल एक्सप्लोरेशन में लगा हो, उसका मुनाफा बढ़ता जा रहा है और ओएनजीसी का 31 मार्च 2010 तक ये मुनाफा 13,403 करोड़ था, जो बढ़कर के 2011 में 22,455 करोड़ हो गया। इसी प्रकार से पिछले क्वार्टर में हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जो 1500 करोड़ के मुनाफे में था, ये बढ़कर लगभग 1700 करोड़ हो गया। भारत पेट्रोलियम का मुनाफा बढ़ा, इंडियन ऑयल का मुनाफा बढ़ा और हम इस बात को समझने में असमर्थ हैं कि आखिर इस मुनाफे के बाद भी सरकार किस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने की घोषणा करती रहती है। राज्यों के बंटवारे की चर्चा उत्तर प्रदेश के मामले को लेकर के बढ़ गई है। हम मानते हैं कि ये निश्चित तौर से एक राजनीतिक हथकंडा है, लेकिन फिर भी हम इस पर कांग्रेस का रुख जानना चाहेंगे। कल कांग्रेस के महासचिव श्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि, और उन्होंने कई राज्यों को उसके साथ जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने पश्चिम क्षेत्र में बिहार की चर्चा की और उन्होंने बुंदेलखंड की चर्चा मध्य प्रदेश के एक भूभाग से जोड़ने की। और हमें स्मरण है कि इसी प्रकार से 2004 के मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने तेलंगाना की घोषणा की थी। हम चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी इस प्रस्ताव पर, जो उत्तर प्रदेश के विभाजन की बात की गई है, उस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे, क्योंकि उनके महासचिव निरंतर इस विवाद को और अपने मंतव्य से लोगों के मन में एक संशय उत्पन्न कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस पर स्पष्टीकरण चाहेगी। आज कोर्ट ने, हमारा ऐसा मानना है कि श्री कुलस्ते, श्री अर्गल, श्री सुधींद्र कुलकर्णी और उनके साथी, उन्हें एक राहत मिली है। इट्स अ रिलीफ ऑफ सम सॉर्ट। It is one of the most unacceptable action which has been done by the government, and it's unfortunate that the whistleblowers had to meet this fate. But the point Bharatiya Janata Party would like to reiterate again, that the culpability of the beneficiary has yet not been established. And I repeat, the culpability of the beneficiaries has yet not been established. And this is the question which is foremost. जो इस पूरे घटनाक्रम के लाभार्थी थे, जो कैश फॉर वोट के इस सिलसिले में जिनकी सरकार को बचनी थी, जो प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बने रहते, जिनकी सरकार बनी रहती, जो इसके लाभार्थी थे, इस पूरे अनुसंधान में उस पूरे प्रकरण की कोई चर्चा नहीं है।